गुड। किसी को पता है? सो जो हम लोग आज टेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है 9.4। तो नवे अध्याय को क्या बोला जाता है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यतम ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान किस प्रकार का है? दिव्य ज्ञान है। और दिव्य ज्ञान मतलब जो हमारा भौतिक ज्ञान होता है, असल में उसे ज्ञान बोल भी नहीं सकते। इट इज नॉट नॉलेज, इट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है, हर बार बदलता रहता है। जिसे आप लोग मॉडर्न एज में देखेंगे, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पकड़ लीजिए या सो कॉल्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज पकड़ लीजिए, या फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट नहीं, दे आर ऑल वेरिएबल्स, राइट। बट जो ये नॉलेज है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सबसे पहली बात तो दिस इज डिवाइन। और ऑन द अदर हैंड इट इज व्हाट? इट इज कॉन्फिडेंशियल, मतलब सबको नहीं बताया जाता। जैसे आप हम लोग किसके इससे अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिसी या डॉक्यूमेंट्स जो कि एक स्पेसिफिक जो हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन पे ही व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। ओनली एक्सेसिबल टू अ पर्सन एट अ सर्टेन पोस्ट और पोजीशन. So these are like termed as confidential documents or something which is not accessible for everyone. So why does Lord say that this is not accessible to everyone? ये ज्ञान सबके लिए अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पे टिप्पणियां की है, इतने आचार्यों ने, और सबके पास अवेलेबल है। ये जो हमारी इस्कॉन की भगवत गीता, प्रभुपाद ने इसको सिंपली एक्सप्लेन किया है। इट्स आई गेस हार्डली 180 रुपीज, राइट, इंग्लिश वर्जन। तो लेकिन ये नॉलेज सबको क्यों नहीं रिवील हो रहा? तो वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बताया गया है। दैट इज व्हाई आज हम लोग देखेंगे क्यों इसको बोला जा रहा है एंड व्हाट इज दिस सिविलाइज्ड एवोल्यूशन। सो विल बी डिस्कसिंग अपॉन दैट लिटिल बिट. So first we'll recite the shlokas, word to word meaning, translation and purport. After that we'll do Mangalacharan and we'll start with the discussion. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. मैं श्लोका रिसाइट करूंगा, आप लोग इसको फोन में अगर किसी के पास है तो देख सकते हैं. मया ततम इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. So word to word meaning: Maya, by me, tatam, pervaded, idam, this, sarvam, all, jagat, cosmic manifestations, avyaktamurtina, by the unmanifested form, mat sthani, in me, sarva bhutani, all living entities, na, not, cha, also, aham, I, teshu, in them, avastitaha, situated. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So translation: by me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Purport: the Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses, it is said. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवोन्मुखी जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः. So this is from Bhakti Rasamrita Sindhu. Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. In the Brahma Samhita, it is stated, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santah Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. One can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside himself, if one has developed a transcendental loving attitude towards him. Thus, for people in general, he is not visible. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by material senses. This is indicated here by the word Avyakta Murtinaha. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. Yet, one should not conclude that because he is spread all over,
he has lost his personal existence. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. For example, a king has a government which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on king's power. But still, one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see in everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of his different energy, and as stated in the Bhagavad Gita, Vistabhyaham idam Krishnam. He is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. So now we'll do Mangalacharan. Right. So all of you can pray to the Lord so that I may be able to speak, apply, and understand for each individual. That is not. You can pray for me also if you all want. That is also good. ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So today's verse is very interesting. Herein the Lord says that I am everywhere, everything is in me, but I am not in them. That's the point. But we all have heard about the concept of Atma and Paramatma, right? Wherein the Lord says that as Paramatma I am within your heart. So how can in this particular verse the Lord say that everything is within me, but I'm not within them? How is that possible? Anyone has any argument, any understanding on this? The session starts with a question. What do you all think? Or how many of you all actually know this, what I'm talking about? Those who all don't know, they can raise their hands. Yeah, you don't know. अच्छा, हिंदी में. Okay, so हम लोग सेशन थोड़ा जगल करेंगे. We'll be speaking in Hindi as well as in English. तो might be एक point को मैं 2 languages में ऐसे बोलूँगा, right? तो जैसे आप देख रहे हैं श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ सर्वव्यापी हूँ. हाँ, ठीक है. और मैं सभी के अंदर हूँ, ऐसा बताया जा रहा है. पहले बोल रहे नहीं, सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं कि सभी लोग मेरे अंदर हैं लेकिन मैं सबके अंदर नहीं. लेकिन परमात्मा रूप में भगवान तो बोलते हैं कि मैं सभी के अंदर हूँ परमात्मा रूप में. तो यहाँ पे इस श्लोक में ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि सभी मेरे अंदर हैं लेकिन मैं सबके अंदर नहीं? क्योंकि भगवान ने सब क्रिएट किया, सब बनाया है, बट मटेरियल वर्ल्ड में इग्नोरेंस की वजह से उसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं और वो जान नहीं पाते बराबर से. दैट इज नेचर. वो तो आप उसका बोलते ना एक प्रकृति बता रहे हैं उसकी स्वभाव क्या है. लेकिन ये है मैं जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि किस प्रकार से सभी चीजें उनके अंदर है लेकिन वो सब में नहीं है. उसका उदाहरण क्या है? मतलब हम लोग हैंड अप हु इज सेइंग. ओके, हम लोग को लगता है इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड he says that उनके अंदर हम है बट हमके अंदर वो नहीं है, क्योंकि हम लोग के अंदर एक्चुअली है वो, बट हम लोग का एक बिलीफ है जो हम लोग को वो करके रखता है, होल्ड करके रखता है उनके साथ. पर आजकल के जनरेशन में वो बिलीफ नहीं है कि हाँ ही इज विद इन अस. तो एक बिलीफ. द थिंग इज व्हाट यू आर टॉकिंग कि मतलब ये हम लोग क्यों नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि सभी लोग मेरे अंदर हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं सबके अंदर. ये भगवान स्टेटमेंट कर रहे हैं. आप लोग एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सभी लोग मतलब लिविंग क्रिएचर्स. हैंड्स अप. हां, सभी लोग इन द सेंस it's nature all the creation, everything in the creation, all creation. हाँ. जैसे समुद्र है,
समुद्र मान लीजिए भगवान है, उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं वो तो आप उसको एक्सप्लेन इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो फिश वाला एग्जांपल को आपने ड्रॉप से रिप्लेस कर दिया कि सब कुछ एक है बट इंडिविजुअल एंटिटी सबकी है, मेंटेन्ड है। सो फिश एंड वाटर आर सेम इफ यू थिंक, सेम एंटिटी, लेकिन फिश का अलग एंटिटी है और ओशन का अलग एंटिटी है, राइट? सो दैट इज द थिंग। सिंपल एग्जांपल, जैसे सनशाइन है, राइट? सूर्य और सूर्य की किरणें हैं, हाँ? तो आप कब बोलते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है? क्या सब लोग बिस्तर पे से जब उठते हैं या फिर जब घर में रहते हैं सुबह सुबह, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, कोई कुछ भी करता है, तो वो सोचता है, वो क्या देख करके? डायरेक्ट सूर्य को देखता है और तब बोलता है क्या? सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको देख करके बोलता है, राइट? लेकिन हम लोग ये देख करके बोलते हैं, एनर्जी को देख करके बोलते हैं कि हाँ ये चीज है। सिमिलरली यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं कि मैं सबके अंदर नहीं हूं, तो व्हाट इज दिस? कि भगवान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सारा क्रिएशन कर पाए, लेकिन हम क्या है, हम लोग मंद हैं थोड़े। तो हम क्या सोचते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो मनुष्य का जो भाव है या फिर उसका जो विश्वास है उसकी वजह से भगवान है। यदि मनुष्य के अंदर विश्वास ना हो तो भगवान होंगे ही नहीं, या उसके अंदर श्रद्धा ना हो। तो ये उन मूर्ख लोगों के लिए मतलब भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब सब मेरे अंदर, लेकिन मैं सबके अंदर नहीं हूँ। और एक पॉइंट ये भी है कि रियलाइजेशन का, जो प्रभु जी ने बताया कि रियलाइजेशन ही नहीं है लोगों को, अंधकार में पड़े हुए हैं, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन से। तो अभी सबसे पहली चीज क्या होती है कि दो रास्ते होते हैं, राइट? एक होता है माया देवी का रास्ता और दूसरा होता है भगवान का रास्ता जो भगवान ने दिया हुआ। तो माया देवी का रास्ता क्या है कि जन्म जन्म से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। फंसे किस लिए? क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं किससे? भगवान से अलग। भगवान बोल रहे हैं तुम ईस्ट जाओ, तो हम बोल रहे हैं नहीं हमको वेस्ट जाना है। वो बोल रहे हैं नॉर्थ जाओ, तो हम नहीं बोल रहे हैं साउथ जाना है। बोल रहे हैं सरेंडर करो, राइट? समर्पण करो मुझे, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, हम क्या करेंगे? हमें समर्पण नहीं करना, हमें राज करना है। तो ये हमारा स्थिति है, इसलिए हम माया के डायरेक्शन। और दूसरा क्या है? भगवत मार्ग। जो साधु संत होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भगवान के दिए हुए आदेशों पे, उनके दिए हुए बोलते हैं ना डायरेक्शन पे चलते हैं। जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उस पे चलते हैं। तो इस प्रकार से दो मार्ग है। लेकिन अब यदि इन दोनों मार्गों में से आप एक मार्ग लेंगे, तो दो मार्ग हैं, तो दोनों में से क्या दिक्कत है? एक मार्ग लें या दूसरा मार्ग लें? मार्ग दो है तो इसका मतलब मार्ग लेने के लिए बने हैं। यदि लेने के लिए होते तो मार्ग क्यों होते? वो पथ बनता ही नहीं। तो सबसे पहला क्या बताया जा रहा है इसमें, यदि आप देखेंगे कि ये मनुष्य जीवन क्या है एक्चुअल में। मार्ग तो दो हैं, लेकिन मनुष्य जीवन आपको जंक्शन पे रखता है। जंक्शन जानते हैं ना आप लोग? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से बहुत सारे वेज होते हैं कनेक्टेड। कल्याण जंक्शन हो गया आप लोगों का। देयर आर 4 वेज एज यू सेड, देयर आर मेनी स्टेशंस, आउट स्टेशंस, राइट? So similarly, our human form, which is given to us, is what? It's a junction, practically. Junction to decide कि हम लोग डिसाइड कर पाए कि हमको माया के पास जाना है या कृष्णा के पास जाना है, दो में से कहाँ जाना है। अब हर एक का अपना अपना फीचर है, समझ रहे हैं? एक होता है ना कि आप लोगों को बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, तो हर एक का अपना अपना बेनिफिट होता है, प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं हम लोग। तो दोनों में कुछ ना कुछ प्रोज है और कुछ कुछ कॉन्स है, यू नो। तो सबसे पहला क्या बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से सोचिए वो भगवत धाम जाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे छुटकारा है उसको। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है नहीं इतना जल्दी भी क्या है, अभी थोड़ा और एंजॉय करते हैं, यहाँ पे इतने सारे नए नए फैसिलिटीज आ रही हैं। एक समय था जब गर्मियां होती थी, गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो गांव में सिर्फ 2 घंटे ही लाइट रहती थी, वो भी कभी आई कभी नहीं आई। और आज भी बहुत सारे गाँव में ऐसा होता होगा। और बट आज तो गाँव में मात्र 2 घंटा कटती है लाइट और बाकी 22 घंटे रहती है। तो चलिए अब तो 22 घंटा हो गया, क्या पता किसी दिन 24 घंटे हो जाए, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे हम। उसके बाद में और आता है कि अभी तो इतनी सारी चीजें निकल रही हैं, इतने सारे गैजेट्स आ रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज आ रही है, इतने सारे सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए इतने सारे नए नए साधन आ रहे हैं। तो उनका भोग करते हैं कुछ जन्मों तक, फिर उसके बाद जाएंगे, क्या दिक्कत है?
अभी जाना तो आवश्यक नहीं, और जाके जाएंगे कहाँ? आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद भी एक जगत है जो उनके लिए रुका हुआ है, चाहे वो स्वर्ग हो, नर्क हो या भगवत धाम। ये तो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता है। एकमात्र उसको छोड़ दीजिए कि जाने का साधन क्या है, मार्ग क्या है, वो तो किसको पता होगा? तब जब यही नहीं पता है कि जाने के लिए कोई और जगह है, तो उसका साधन या उसका मार्ग कैसे पता होगा? तो बहुत कठिन है ना आज के समय में ये जानना, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको ये नहीं बताया जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। इस जीवन में रहते हुए आप कहाँ जाएंगे ये नहीं बता पा रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोल रखी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रखे हैं, बट उनका सो कॉल्ड लोग कोर्सेज क्यों करते हैं? ताकि उनको अच्छी प्लेसमेंट्स मिले, राइट? लेकिन प्लेसमेंट्स का रिजल्ट क्या आता है? आधे से ज्यादा बच्चे केटी खा के बैठे रहते हैं, बैग लगा के बैठे रहते हैं, और जो क्लियर भी हो जाए उनको जॉब नहीं होती, राइट? तो उनको इसी लाइफ का नहीं पता, आगे की लाइफ का तो छोड़ ही दो, क्या ही पता होगा उनको। अब दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति भगवत धाम जाना चाह रहा है, राइट, तो भगवत धाम जाने के लिए उसको ये चीज तो छोड़नी पड़ेगी, इंद्रिय तृप्ति छोड़नी पड़ेगी उसको, राइट? अब ये सब पशु होता है, तो पशु के पास क्या इतना बुद्धि है कि वो ये सारी चीजें समझ पाए? हम इसे आप लोग लमसम नहीं बोल करके भी 10-12 डिवोटीज हैं यहाँ बैठे हुए, इंक्लूडिंग में तेरा, पकड़ लीजिए। कोई पशु दिख रहा आपको? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऐसा कोई आकर के वो जिज्ञासा कर रहा हो कि भगवान का नाम क्या है, भगवान के पास कैसे आना है, हम कहाँ से आए हुए हैं, ये शरीर को हम देख रहे हैं, शरीर पैदा हुआ, बचपन से जवानी आई, जवानी से अभी थोड़ा एक बोलते हैं ना बॉयहुड से यूथहुड, मैनहुड आया एक, और फिर उसके बाद में बुढ़ापा आ जाएगा, फिर चले आएंगे। लेकिन ये क्यों आ रहा है, क्यों मुझे ये सहन करना पड़ रहा है? या फिर मैं इतने सारे, मतलब शरीर तो बदल रहा है, लेकिन वो एक व्यक्ति कौन है जो इस बदलते हुए शरीर के साथ हमेशा बैठा हुआ है? ये प्रश्न किया हमें से किसी ने? नो वन एवर क्वेश्चन। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे पुराने जिन्होंने ये प्रश्न किया है, जिसे कहा जाता है था तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब व्यक्ति इस प्रश्न को पूछता है अपने आप से, यदि आप में से बहुत लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो, तभी भी आपने पूछ लिया कि हाँ ये तो शायद से पूछना चाहिए था, यहीं से आपका भक्ति या फिर बोल सकते हैं ना इस जिज्ञासा से ही आपका एक चालू हो गया है इंक्वायरी, एक बोलते हैं ना यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अब उसके लिए भी गाइडेंस नेसेसरी है, राइट? तो गाइडेंस कैसे मिलेगा? अभी एनिमल्स हैं, जो पशु है वो किसके पीछे भागता है? खाने के लिए भागता है, राइट? क्योंकि उसको उसके ऊपर का कुछ पता ही नहीं है, और क्या उसे ये भी पता रहता है कि ये जो खाना है जो मिल रहा है इसके लिए क्या करना है? इसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। पता है किसी पशु को कि खाना यदि लेना है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है? किसी पशु को नहीं पता, वरना वो लोग भी कोट टाई लगा करके या फिर किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके बैठे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है? मनुष्य को ये पता है कि हमें खाने की आवश्यकता है, और खाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब ये भी उस पशु का ही समान है। किस प्रकार से? जैसे यदि उसे खाना ही चाहिए तो फिर पैसे क्यों कमाना? तो उगा के भी खा सकता है, खाने की आवश्यकता है, या फिर उस पैसे के बदले सीधा खाना ले सकता है। लेकिन आज हमें वो जो पैसे हैं मात्र 1000 रुपए, कुछ 1000 रुपए, बहुत सारे लोग तो इंडिया में हजारों में ही जी रहे हैं, लाखों करोड़ों वाले तो थोड़े दूर के होते हैं जिनको लाखों करोड़ों मिलते हैं, राइट? तो कुछ हजारों के लिए वो क्या करता है? श्रम करता है। लेकिन श्रम किस लिए कर रहा है? खाने के लिए कर रहा है। खा कितना पाता है? ठंडा खाना खाता है, ऑफिस जाता है तो घंटों घंटों बाद। बताया जाता है यदि आप कोई भी चीज पका रहे हैं या कोई भोजन है उसे आप लोग पका रहे हैं तो उसके मात्र 2 घंटे तक ही उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो बने रहते हैं उसमें, the nutritious element or the food is nutritious till this particular span of time, 2 to 3 hours, that's it। और हम लोग ऑफिस जाते हैं सुबह 9 बजे, हमारा लंच ब्रेक क्या होता है? 12:30 1 o'clock, खाते खाते 2 बज जाते हैं, फिर उसके बाद आओ बैठो, क्या फायदा? फिर क्या खा रहे हैं? फिर कुछ नहीं खा रहे। तो उसी प्रकार से हम देखते क्या है कि यदि व्यक्ति हजारों रुपए कमा ले या फिर लाखों रुपए कमा ले तो उसका फायदा भी क्या है? इतना कमाने के बाद उसका कुछ अर्थ बनता है? नहीं बनता, उसका कुछ अर्थ नहीं बनता है। और है क्या वो? मात्र एक कागज का टुकड़ा। उस कागज के टुकड़े के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना श्रम कर रहे हैं, यदि आप देखेंगे। और इंटेलिजेंस यहाँ पे कहाँ आता है कि मतलब
इंटेलिजेंट होगा अगर व्यक्ति, तो वो सोचेगा ये कि मात्र इस पेपर के टुकड़े के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ अपने जीवन में, और असल में वो पेपर का टुकड़ा लाता कुछ नहीं है, दुखी लाता है। हम सोचते हैं वो हमें सुविधा देता है, लेकिन वो स को हटा करके द लगा दीजिए आप, वो दुविधा देता है, सुविधा नहीं देता, राइट। और बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा, आप लोग जितने लोग वर्किंग होंगे आप लोगों को पता होगा, जैसे पैसे आना चालू होगा तो क्या होता है उसके बाद में। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बोलते थे, ये जो समाज है, दिस सोसाइटी इज व्हाट, दिस सोसाइटी इज a combination or it consists of cheaters and cheated, right? अब हमारा इच्छा है, हमको भोग करना, उसके लिए पैसों की आवश्यकता है, मात्र खाने के लिए नहीं, हम कोई वस्तु चाहते हैं। या फिर आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा गया है, प्रभुपाद बोलते हैं कि ये पूरा जो भौतिक जगत चल रहा है इसका आधार क्या है, मात्र मैथुन सुख। ओनली सेक्स एंजॉयमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस होल मटीरियल एंगेजमेंट और ऑफ दिस होल मटीरियल वर्ल्ड। और आप सब इसको अगर थोड़ा गहराई से अवलोकन करेंगे तो आप लोगों को भी पता है कि एक्चुअल में है क्या। बचपन से बताया जाता है बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे पैसे कमाओगे, तभी तो कोई अपनी बेटी देगा तुम्हारे हाथ में। ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो इनडायरेक्टली बोला जाता है, ऐसा नहीं डायरेक्टली बोला जाता है तुम सेटिस्फाइड रहोगे, सुख मिलेगा तुमको, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोला जाता ना किसी को घर में। और अब समाज को इसके अलावा कुछ पता भी नहीं है, उनको ये शिक्षा बोलते हैं ना, एक प्रकार से लुप्त हो गई है। ऑल यू कैन से दैट इट्स यू नो कंसील्ड काइंड ऑफ और डिसअपियर्ड, दैट्स द होल थिंग। अभी भी है लेकिन कुछ ही लोगों को पता है या रियलाइज्ड है, समझ रहे हैं? तो अब जब हम इस सोसाइटी में हैं तो हमको तो जीवन यापन करना है जिसके लिए पैसों की आवश्यकता है, राइट। तो फिर हम कैसे इस चीज को मान ले कि भाई पैसों की आवश्यकता नहीं है, हमें मात्र खा पी करके जीवन यापन कर लेंगे। उसका भी उत्तर यदि आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, there was a big war in Germany and after it was being overruled, these pieces of paper were thrown like anything in the whole country और कोई उसको उठा नहीं रहा था, फेंके पड़े थे ऐसे गड्डी के गड्डी, पेपर उड़ाए पड़े, लेकिन उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो उस पेपर का वैल्यू क्या है, कुछ है उसका वैल्यू? पहले के जमाने में यदि आप देखेंगे तो करेंसी क्या हुआ करती थी, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें जिसकी चलिए कुछ वैल्यू भी है, लेकिन इस पेपर की क्या वैल्यू है? किसी का फोटो लगा दिया, कुछ नंबर्स लिख दिए, बस हो गया, अच्छा सा थोड़ा डिजाइन बना दिया, दैट्स इट। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस? उसका वैल्यू है कुछ? 2000 की नोट, सबसे बड़ी नोट थी हमारे इंडिया में, बंद हो रही है, राइट। क्या हुआ उसके साथ? बंद हो गया। उसके बाद भी कुछ आएगा, फिर वो भी बंद होगा, चलता रहेगा ये, दिस प्रोसेस विल गो ऑन। बट व्हाट इज परमानेंट देन? This is temporary, this is changing. What is permanent? So the thing is that no, even gold is kind of termed in money. You know, when you sell gold, what do you get? Right? Why do you keep gold in the first place? In order to get a high value in near future, right? That's it. For that paper. Yes, exactly. But we never think of that, do we? Right? So now, you know, the thing is, Krishna says in Bhagavad Gita 3.14 that Annad Bhavanti Bhutani. You know, we already have taken a session on this lecture, on this particular shloka. So in order to produce food, what is required? First thing, सबसे पहली आवश्यकता क्या है? यदि किसी को अपना बोलते हैं ना एक हिसाब से अनाज की उत्पत्ति करनी है, सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड? What do you require? फर्स्ट थिंग इज लैंड, करेक्ट। तो पहले आपको एक जगह की आवश्यकता है। जगह की कमी है क्या हमारे पास? कितने लोगों को लगता है जगह की कमी है हमारे पास? किसी को नहीं लगता। मुंबई में भी जगह की कमी नहीं है, अगर आप देखेंगे, मात्र कुछ कुछ शहरों में, एक बोलता है ना जैसे सेंटर क्रूज, कलीना, सम कैपिटल्स वेर इन इंडस्ट्रीज आर बेस्ड। आप चले जाइए यहाँ से विरार साइड पे, आपको खेती खेत दिखेंगे लंबे लंबे। यहाँ से विरार की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर भी जाने नहीं बोल रहा हूँ, उसके आगे दहानू पालघर तो अलग बात है, राइट। तो हमारे पास जमीन है और खाली पड़ी हुई है,
और मात्र यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉरेन में भी आप देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, जमीन पड़ी हुई है लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं करना चाह रहा, फार्मिंग कोई नहीं करना चाह रहा, सब सिर्फ बाय कर रहे हैं, दे आर टेकिंग। और अगर वो उत्पत्ति भी कर रहे हैं तो किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, जिससे थोड़ा प्रॉफिट हो। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में क्या ग्रो करते हैं, कॉफी, दे ग्रो कॉफी मोस्ट। कॉफी पी करके आप कुछ कर नहीं सकते, बोला जाता है बहुत ये है वो है, कॉफी से कुछ नहीं होता, बस कुछ समय तक, फिर उसके बाद फेंक देंगे उसको। फिर उसके बाद है क्या दूसरा, आप देखेंगे कॉफी उन लोग ग्रो करते हैं, देन दे ग्रो टीज ऑल्सो, वो हमारे आसाम में भी कल्टीवेशन होता है ट्री का, राइट, टी का, टी ट्रीज दे कॉल इट। देन देयर आर टबैको, राइट, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सस्टेनेबिलिटी। देगा क्या, टबैको खाइए आप, कॉफी पीजिए, और क्या बोला था मैंने, एग्जैक्टली टी, इससे जीवन यापन कर लेंगे आप लोग, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मात्र आप लोगों के पास गेहूं हो और एक गाय हो घर पे, आप उससे नाना प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। मात्र गेहूं और गाय, दो चीज। गाय से आपको दूध मिलेगा, गेहूं का जो भी फसल होगा उस पर से थोड़ा बहुत निकाल करके आप गाय को खिलाइए। गाय को खाने के लिए चाहिए क्या, उसको छोड़ दीजिए, वो घास खा के खुश रह जाएगी। उसके लिए आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाना, 5 स्टार मील नहीं खिलाना उसको, राइट, तो खुश है। ऑब्वियसली आप लोगों को आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हमें वो जीवन नहीं चाहिए। आसान है ना जीवन, हमको तो कुछ कॉम्प्लेक्स चाहिए, जैसे भक्ति बोला जाए और हम लोग बहुत लोगों को बोलते हैं कि आप लोग आइए जप कीजिए, और मात्र जप करने से ही आप लोग भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम सर नीचे पैर ऊपर ना करें तब तक हमको लगता नहीं कि हम भगवत धाम जाएंगे। ऐसी कुछ तपस्या चाहिए ना हम लोगों को, एक पैर पे खड़े रहें, कोई मंत्र बोले ओम ऐसे करके, कैसे पहुंचेंगे भगवत धाम इतने आसानी से, हंसते खेलते प्रसाद लेते हुए। लेकिन कलयुग का ये धर्म है, सबसे महत्वपूर्ण ये दिया गया है। और ये भी देखा जाता है कि बहुत सारी जगह पे क्या है, कसाई खाने। कसाई खाने आप लोग जानते होंगे, फॉरेन में बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि ले वहां पे तो उपज करते नहीं लोग, तो इजीली क्या अवेलेबल है, उन लोग खिला रहे हैं जानवरों को, जानवर को काट करके दे रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि जानवरों को भी खिलाने के लिए तो अनाज की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उस अनाज की उत्पत्ति वो स्वयं के लिए क्यों नहीं कर सकते। This is our level of intelligence in Kali Yuga, right? Why to eat animals? Why you're eating animals? What's the point in eating animals, right? That's the whole thing. So ये पूरा आप देखिए, इसको एक ही सेंटर पॉइंट क्या रखेंगे, आज का टॉपिक ही रखिए आप। Our topic is civilized. ये टॉपिक को रख के ही आप लोग ये पूरे पॉइंट्स को सुनिए। ये हमारा जो एवोल्यूशन है वो सिविलाइज्ड है या नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं, ये एक अच्छी जनरेशन है, दिस इज लाइक मच मोर एजुकेटेड। तो आप देखिए किस प्रकार का एवोल्यूशन है हमारा, किस प्रकार से हम लोग सिविलाइज्ड हैं, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट इज अबाउट द स्लॉटर हाउसेस, राइट। नाउ कृष्णा सेज दैट, अब ये तो कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये सब चीजें कि भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को, इवन भगवद गीता में भगवान ये भी बता रहे हैं कि आपको खाना क्या है और क्या नहीं खाना। दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं, उस प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं, उनके हरकतों के बारे में बता रहे हैं कि उनका स्वभाव क्या होता है, उनकी आदतें क्या होती है, ये सब कुछ बता रहे हैं भगवान। लेकिन अब भगवान क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उनका जो ये इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो नहीं करता है, वो किस श्रेणी में आता है, तो अश्रद्धानव पुरुषः। सो पुरुषः मींस एनी लिविंग बीइंग, राइट। सो अब देखेंगे आप, हर एक व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है ना सुनने की, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, मैं बोलता है ना लेस इंटेलिजेंट हो, हाई इंटेलिजेंट हो, लेकिन लिविंग एंटिटी, मतलब जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है उनकी बात कर रहे हैं, जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं। वो सुनेंगे भी तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे इतने हाई सब्जेक्ट मैटर को। आप देखेंगे कुत्ते भी सुनते हैं, कुत्ते बोलो सिट तो सिट, बोलेंगे भाई गेट अप और स्टैंड स्टैंड, वॉक देयर वॉक देयर, कम बैक, रोल अराउंड, इतना ही समझेगा वो। लेकिन अभी अगर मैं उसको आज का श्लोका बताऊं और प्रभुपाद का कमेंट्री सुनाऊं, क्या समझेगा? समझेगा कुछ नहीं समझेगा। तो ये फैसिलिटी या फिर ये फीचर हमारे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में अवेलेबल है, चाहे वो किसी प्रकार का भी बॉडी हो, नॉर्थ का बॉडी हो, साउथ का बॉडी हो, वेस्ट का बॉडी हो, ईस्ट का बॉडी हो, फॉरेन बॉडी हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी हो,
सब लोग समझ रहे हैं, राइट? हर एक जन समझ सकता है इस चीज को। उसी प्रकार से जो आप देखेंगे कृष्णा क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में कि सर्व योनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्ते योनियो, कि इसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि अनेक प्रकार की लिविंग एंटिटीज हैं, राइट? नाना प्रकार की। अब उसमें से यदि आप देखेंगे तो जलचर स्थलचर बोला जाता है ना, aquatic, the one who are human beings, even in human beings there are more than 4 lakhs variety, समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो आप देखेंगे जलचर हैं या aquatic स्पीशीज हैं, उसके अंदर कितने हैं वेरिएशंस? दे आर 9 lakhs, राइट? तो हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं कि आपको सिंपली क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। रिसर्च वर्क की जरूरत ही नहीं है, क्यों उतना समय लगाएंगे आप? और हमारा समय लिमिटेड भी तो है। मैक्स टू मैक्स कोई व्यक्ति बूढ़ा कब बोलते हैं उसको? आज के समय में यदि वो 50 या 60 हिट कर दे ना, 50 ईयर्स 60 ईयर्स का हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा जी लिया है। 100 पहुंच जाए तब तो मतलब अलग ही लेवल है, समझ रहे हो? 100 पार कर लिया तब तो मतलब क्या पता क्या ही किया था उन्होंने, उनका सेहत क्या था। तो उसी प्रकार से जो ये 9 लाख स्पीशीज है उसको सिंपली क्या करना है, हमको एक्सेप्ट करना है, राइट? एंड दैट इज वैदिक नॉलेज। और कोई व्यक्ति आप देखेंगे अभी भी इसके लिए मरीन एक्सप्लोरर्स हैं जो जाते हैं नीचे और जाकर के अलग अलग प्लांट स्पीशीज को रिसर्च करते हैं एंड देन दे प्रेजेंट देयर रिसर्च। लेकिन कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर रिसर्च? आप में से कभी किसी ने मरीन बायोलॉजिस्ट का कोई थियरी पढ़ा है, रिसर्च वर्क पढ़ा है कभी? बेचारे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, घंटों घंटों पानी में रहते हैं, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के अलग अलग प्राणियों को ढूंढते हैं, फोटो खींचते हैं, उनके बारे में ऊपर आके रिसर्च करते हैं। मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल इन वेन, राइट? उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है, क्यों मेहनत की जा रही है, राइट? आप में से कोई एक्सप्लोर करना चाहेगा उसको? कोई नहीं चाहता, राइट? लेकिन यदि आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको डाइविंग का बहुत शौक होता है ना, समुद्र में तैरने का, इन सब चीजों का बहुत शौक होता है। लेकिन वो शौक लेके कहाँ जाएगा? आपको उसी योनि में लेके जाएगा जो जलचर योनि है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम। सो यदि कोई मृत्यु के समय पे जो भी सोचता है, फिर उसको जो अगला शरीर है उसी प्रकार का प्राप्त होता है, समझ रहे हैं? अभी कोई है जो बोलते हैं ना आपकी आखिरी इच्छा क्या है, पूछते हैं कि बहुत फेमस है ना ये, मरने के टाइम पूछते हैं पिताजी आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो पिताजी बोलते हैं बेटा मुझको पुरानी हवेली पे लेके चलो, एक कॉफी बनाओ, मैं अपना शरीर वहीं छोड़ने दूं। वहीं कोई चूहा हुआ बनेगा वो, अंत में सोच तो उसी जगह का रहा है ना, या तो कोई कुत्ता बनेगा उसके आसपास, या तो चूहा बनेगा, वहीं पे कुछ ना कुछ बनेगा। क्यों? क्योंकि अंत समय भी उसकी आसक्ति किससे थी? उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से। ऐसा नहीं कि उसकी आसक्ति किसी और चीज की थी। बहुत सारे पुण्य आत्मा होते हैं, बेटा मेरे पास कुछ ही महीने बचे, चलो 4 धाम करा लो। तो उन्होंने धाम में जा करके भगवान के कुछ बोलते हैं ना, कृपा लेके आते हैं, कृपा मांगते हैं, और उसके बाद एक्सटेंड भी हो जाता है लाइफ स्पैन किसी किसी का, होता है भगवान की कृपा, मरने वाला था बच गया, समझ रहे? तो ये भी होता है बहुत सारे लोगों के इसमें। तो इसी प्रकार से भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि आपकी इच्छा है तो आर्टिफिशियली क्यों ट्राई कर रहे हो? आप ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है तुमको इस इंक्वायरी के लिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उसका तैर रहे हो जाकर के, राइट? इससे अच्छा क्या करो, ये शरीर त्यागो, तुमको देते हैं ना नया शरीर मछली का, वो तैरने के लिए ही बना, तैरते रहो। तो भगवान वो पूरा इच्छा पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो प्रकृति है ना, जैसे इसमें शुरुआत में बताया गया है, क्या है? 2 प्रकार की प्रकृति है, एक है माया भौतिक और एक है दैविक, राइट? तो ये जो भौतिक प्रकृति हम लोग इसके ही कंट्रोल में है। इस प्रकार से कठपुतली कंट्रोल में होता है ना पपेटियर के, जिसको कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से हम भी कंट्रोल में। हमको लग रहा है कि हम लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से चीजें, मैं सोच रहा हूँ मैं ये हाथ उठा रहा हूँ, लेकिन इस हाथ के लिए भी एक देवता असाइन है, यदि उनकी परमिशन नहीं होगी ना तो मैं चाह के भी उठा नहीं सकता। पैरालिसिस मतलब होता क्या है? सिर्फ नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन नहीं होता है, यू आर नॉट हैविंग द ब्लेसिंग, दैट्स द होल थिंग। वो भी समझ आएगा, बहुत सारे लोगों का टेस्ट किया जाता है, नर्वस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन क्या पता ड्यू टू अननोन रीजन वो एक्ट नहीं कर रहा। साइंटिस्ट यहाँ तक आ जाते हैं,
जब भी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते सो कॉल्ड साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स, तो दे टर्म इट ऑन गॉड पार्टिकल। सुना है आप लोगों ने ना गॉड पार्टिकल? उसका प्रॉपर्टी ढूंढ ही नहीं पाए, क्या बोलते गॉड पार्टिकल, अभी तक नहीं ढूंढ पाए शायद से। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग यदि देखेंगे, अब इस पे कोई विश्वास कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कि मतलब किस प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम स्मरण कर रहे हैं उसी का हमको अगला जीवन मिलेगा। सो दिस इज वेरी पेक्यूलियर थिंग, और बहुत ही सटल है ये। आप में से कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, या फिर नहीं किया तो आप लोग आगे करेगा। आप सभी को सपने आते होंगे ना, सपने सभी को आते हैं, यदि कोई गहरी नींद नहीं ले रहा हो तो आपके सपने आपने कभी नोटिस किया उसका पैटर्न क्या होता है, ड्रीम्स का पैटर्न क्या होता है? कभी किसी ने एनालिसिस किया है क्या? हाथ ऊपर कीजिए। क्या होता है ड्रीम्स का पैटर्न? मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं जस्ट लास्ट डे पहले कुछ चीज को बहुत ज्यादा सोच लिया है, हाँ, उससे पूरा बेसिस वही रहता है ना सपने का, और उसके आगे पीछे चीजें रिवॉल्व होती है। कोई दूसरा आपको बैकग्राउंड दिख जाएगा, कोई अननोन पीपल दिख जाएंगे आपको, ये है कौन, ये किसको देखा मैंने, और फिर अगले ही दिन आप उस व्यक्ति को देख लो रोड पे चलते हुए। तो सिमिलरली ये चीजें जो होती हैं, ये एक प्रमाण है कि हम लोग जो भी चीज रिमेम्बर करते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, चाहे वो सपना देखना हो या शरीर छोड़ना हो, आपको अगली चीज वैसी ही मिलेगी। आप देखेंगे यदि सपने में कि हाँ मैं देख रहा हूँ ये चीज है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो आप लोग किसी एक लोकेशन पे या फिर किसी एक पर्सन से मिलेंगे जो कि आपके उस सपने को रिसेंबल करता है। अरे यार ये तो मैंने देखा हुआ है कहीं पे, हुआ है, अधिकतर लोगों के साथ हुआ होगा ये, क्या पता कितने लोगों ने ध्यान दिया इस चीज पे। तो उसी प्रकार से एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें प्रभुपाद कि ये एक हिसाब से प्रमाण है कि हम लोग उतने लेवल पे, अब हर कोई मर करके फिर एक्सपीरियंस करके फिर बोल तो नहीं सकता कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, अनलेस एंड अनटिल वो जड़ भरत या भरत महाराज ही क्यों ना हो, जो श्रीमद् भागवतम में आते हैं। पहले महाराज के शरीर में थे, फिर हिरण्य के शरीर में गए, फिर जड़ भरत बने, फिर उनको सब चीजें याद आई कि किस प्रकार से ये हुआ, ये सारी चीजें, और वो भगवत धाम चले गए इसके बाद। तो ये सारी चीजें होती है, राइट। और एक और एग्जाम्पल किसका है? बीमारी का है। यदि आप बीमारी के मात्र कांटेक्ट में आ जाओ, राइट, हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने तो मात्र इच्छा की ना, लेकिन ये इच्छा किस प्रकार से मेरे को शरीर में ले गई, राइट। तो सिर्फ एक डिजायर थी, मेरे को एक शरीर कैसे मिला उसके बेसिस पे। तो आप लोग अगर बीमारी का देखेंगे तो जो व्यक्ति बीमार होता है ना, वो सिर्फ डिजीज के कांटेक्ट में आ, जैसे सर्दी पकड़ लीजिए, कोई है आसपास में, मुझे है सर्दी और प्रभु जी को है, प्रभु जी को नहीं है, ये मेरे साथ में है, लेकिन ये सिंस मेरे कांटेक्ट में है, वायरस गया, इनको कांटेक्ट हो, ऑटोमेटिकली डिजीज बिल्डअप हो गई, राइट। कुछ किया इन्होंने, तो रोकने का प्रयास हो किया, फिर भी बिल्डअप हो गई कि क्यों हो रही सर्दी, सोचा होगा ना मानसिक रूप से, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। सिमिलरली आप लोग जब डिजायर करेंगे तो आउट ऑफ दिस मटेरियल अरेंजमेंट आपको शरीर मिल जाएगा बना करके, कि आप एंजॉय कीजिए उसको। तो और ये प्रकृति का नियम है यदि आप देखने जाएंगे, और ये बताया गया भगवत गीता 3.27 में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। और हम लोग क्या है इसके अंदर है। तो बॉडी को अलग अलग बोलते हैं ना, या फिर इस आत्मा को ट्रांसमाइग्रेट करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए शरीर तो होना आवश्यक है, राइट। तो शरीर ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे डिजायर के हिसाब से, बस हमको यहाँ से उठ करके वहां जाना है। जिस प्रकार से आप देखेंगे इतने सारे सो कॉल्ड इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग या फिर मैमल्स, ये सारी चीजें ये ऐसे ही नहीं है कि बना दिया, किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ इच्छा की जो कि उस पर्टिकुलर योनि में ही पॉसिबल है उसको पूरा करना, राइट। तो इसलिए इतनी सारी वैरायटीज बनी, और सोल क्या कर रही है? ट्रांसमाइग्रेट कर रही है इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट डिजायर, दैट इनेट डिजायर। उसको जो इच्छा है ना, इतने आंतरिक रूप से इतनी दृढ़ इच्छा है उसकी कि मेरे को ये चीज पूर्ण करनी है, तो उसी प्रकार से वो घूम रहा है। लेकिन यदि आप देखेंगे भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं इसमें कि आपको किस प्रकार से इन भौतिक गुणों को पार करके मेरे पास आना है, और ये इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये सही है, जो भी ये आप लोग को दिया गया है इंस्ट्रक्शंस भगवान द्वारा या हम लोग को मिला हुआ है, ये सब सही इंस्ट्रक्शंस। आप देखेंगे जितने लोग इसका पालन करते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली सारी चीजें आती हैं। रिनंसिएशन सबसे बड़ी चीज, वैराग्य बोलते हैं ना हम लोग। आज के समय में तो वैराग्य से भी लोग जलते हैं। पहले तो लोग सिर्फ यदि कोई व्यक्ति के पास धन संपत्ति ज्यादा हो, ये सब चीजों उससे ही लोगों को जलन होती थी। आज तो किसी के पास वैराग्य है तो भी जलन होती है लोगों को,
क्या तुम भाई बैठे बैठे खा रहे हो, पी रहे हो, संतुष्ट हो इतनी चीजें में? जाओ मेहनत करो, घर और बनाओ, अच्छा गाड़ी लो। इतने युवा हम लोग को सुनने के लिए बहुत मिलता है। यस, वैराग्य मतलब क्या? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन ट्रांसलेशन उसका एक्चुअल में वैराग्य का यदि आप देखे जाए कि किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं में या इस भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में आसक्ति नहीं है। इसको नहीं चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, नहीं चाहिए बड़ा बड़ा जॉब, नहीं चाहिए हजारों रुपए, नहीं जीना सो कॉल्ड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी जहाँ पे दिया गया है कि आप ये करिए, इस उम्र पे ये करिए, इस उम्र पे ये करिए, इस उम्र पे ये करिए, फिर इस उम्र पे शरीर छोड़ दीजिए। और कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम आपका जीवन बता सकते कि आपके जीवन में आपको क्या क्या करना है, तो आपके जीवन में आगे क्या होगा। लेकिन जीवन के अंत के बाद क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। बोलते हैं ऐसा, ये लास्ट वाला पार्ट नहीं बोलते कि आप मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, बोलते आप मेरे हिसाब से चलोगे तो सफल रहोगे, मेरे गाइडलाइंस पे चलो, राइट। सो भगवान बता रहे हैं इसमें। लेकिन आप बोलेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग बाहर बता रहे हैं ना, इतने सारे काउंसलर्स बैठे हुए हैं, मोटिवेटर्स बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, तो हम उनका क्यों नहीं सुने? उनका तो सुन करके लोगों ने देखिए IAS IPS IES क्रैक्स किए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरीज, तो हम लोग क्यों नहीं उनका सुने? प्रश्न उठता है ना हमारा, क्योंकि उनके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं ना, 4 त्रुटियां हैं उनके अंदर। सबसे पहले त्रुटि यदि आप देखें कि वो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, कमिटिंग मिस्टेक्स ना। हम सब करते हैं कि नहीं? कोई ऐसा बोल सकता है मैं गलतियां नहीं करता? कोई नहीं बोल सकता। अब गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि लिए वो माया में है, इल्यूजन, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं ना, आप जाएंगे, यदि आप में से कितने लोग गए, मैं भी नहीं गया हूँ कभी रेगिस्तान में, लेकिन जो व्यक्ति जाता है या फिर हम देखते हैं तो मृग छाया होती है वहां पे ना, यू सी मिराज, आपको ऐसा लगता है बस वहां पे पानी पड़ा हुआ है ना। वहां जाके देखता है अरे यार पानी तो नहीं है यहाँ पे, दिख तो रहा था, फिर देखता फिर वहां पानी पड़ा, फिर देखता वहां पर, लेकिन पानी है ही नहीं, रेगिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो इल्यूजन में, इसलिए वो ये सारी चीजें देख रहा है, राइट। अब ये हो गई 2 चीजें। व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज, अब वो इल्यूजन में क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसकी सेंसेस इम्परफेक्ट है ना। अब ये आंख है, ये आंख से मैं एंड तक देख सकता हूँ, लेकिन उस दीवार के उस पार क्या है, उस कबर्ड के अंदर क्या है, मैं वो नहीं देख पा रहा। बाकी चीजें मैं देख पा रहा हूँ, अब मैं कबर्ड के अंदर चीजें नहीं देख पा रहा, इसका मतलब ये है कि कबर्ड के अंदर कोई चीज नहीं है ना, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको। क्यों? इम्परफेक्ट सेंसेस। लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, थोड़ा बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन जितना क्लियर अभी दिख रहा है उतना क्लियर कुछ नहीं दिखेगा, राइट। सो टेंडेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल, committing mistakes, illusion, imperfect senses, right? And what is the last one? Tendency to cheat, right? धोखा देना, छल करना लोगों के साथ में, सबके अंदर है, कोई नहीं बोल सकता नहीं है। छोटे से बच्चे में भी होता है, चिढ़ा करके भाग जाएगा आपको, या कोई चीज उठा करके भाग जाएगा, छल ही रहा है वो आपको, लेकिन छोटे लेवल पे। पॉलिटिशियंस बड़े लेवल पे, ऐसी चीजें होती हैं, राइट। सिमिलरली हम लोग यदि देखेंगे कि आप इस पर्टिकुलर साइकिल में लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप पढ़े रहिए यहीं पे, और हम लोग माया में हैं। क्यों? क्योंकि लिए हमको आदत है, हम क्या चाहते हैं, एक आसान तरीका चाहते हैं ना, कितने आसानी से जीवन जी लें, बस कौन इतना मेहनत करेगा, इतना सेवा करो, साधना करो, 16 माला जप करो, भगवद गीता पढ़ो, 500 श्लोक, कौन पढ़ेगा ये सब? रहने दो, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो उसका भी भगवान बता रहे हैं कि यदि किसी को वापस आना है यहाँ पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आप टेक्स्ट नंबर देखिए 8.19, 8वां अध्याय 19वां श्लोक, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, राइट। और हम लोग यदि देखेंगे भी उसका ना, हमको उदाहरण है, भूत्वा भूत्वा मतलब नाना प्रकार के जीवों में जा रहे हैं क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। एक सिंपल देखिए, जब कम्युनियन होता है, राइट, मेल एंड फीमेल का, तो एक स्पर्म के रूप में बच्चा जाता है अंदर, और छोटे से अणु में फिर आत्मा आती है, फिर वहां से ग्रो होता है वो एक लंप में, फिर उसमें क्या होता है, जो 9 होल्स है वो होते हैं 2 डाउन एंड रेस्ट, 7 आर अप, राइट, 2 ears, 2 nostrils, eyes and 1 mouth, right? These are 7, and 2 are rectum and anus, these 2 things. So पहले ये डेवलप होता है, फिर उसके बाद में आपके हैंड्स एंड लेग्स आते हैं, राइट। अब यदि उसका सुकृति है बच्चे का, तो नेचुरली द एयर विल पुश हिम आउट, अदरवाइज उसने बहुत पाप कर्म किया तो पेट में ही चला जाएगा, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि
बहुत सारे लोगों का यही गति होता है आगे चल के। जो व्यक्ति अबॉर्शंस कराते हैं, ये सब चीजें करते हैं ना, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पेरेंट्स हु आर इन्वॉल्व, उनका गति क्या है वो भी दिया गया है शास्त्रों में। तो हम लोग देख रहे हैं कि फिर उसके बाद में वो बच्चा बड़ा होता, स्टार्टिंग में होता है ना, ही गोज टू चाइल्डहुड, यूथहुड, मैनहुड, बिकम्स ओल्ड एंड गोज। लेकिन यदि बच्चा है वो बोले कि नहीं नहीं मुझे बड़ा होना ही नहीं है, तो नहीं होगा क्या वो? कोई बच्चा नहीं मैं बड़ा नहीं होना चाहता, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति वो बोल रहा मैं जवान नहीं होना चाहता, कोई जवान है वो बोलता है मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। लेकिन क्या बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं। यू ऑल आर फोर्स्ड, वी आर ऑल फोर्स्ड। हम लोग, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम लोग फोर्स्ड हैं, हम लोग किसके ऊपर हैं प्रैक्टिकली आश्रित? 3 गुणों के ऊपर। वही चीज हमको खींच करके लेके जा रही है, राइट? तो हम सब बंधे हुए, लेकिन किसी को, ये ऐसी बेड़ियां हैं ना जो किसी को दिखती नहीं। आप ऐसे बहुत लोगों को अनुभव होगा कि आप लोगों को पता है कोई चीज गलत है और मुझे नहीं करना है, लेकिन आपको कोई करा रहा है और मेरे को करना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है मेरे को करने के लिए, फिर भी कर रहे हो आप, फिर भी कर रहे हो। द क्वेश्चन आस्क्ड बाय अर्जुना टू कृष्णा, मैं करना नहीं चाह रहा लेकिन मुझसे हो रहा। तो भगवान बोलते हैं क्योंकि 3 गुणों की वजह से, ये जो 3 गुण है ना, सतो रजो तमो, इसी वजह से तुम ये चीजें कर रहे हो, भगवान बता रहे हैं। तो अब व्यक्ति है वो सोच रहा है कि चलिए आगे चल के मुझको ऐसा शरीर मिला है तो इस शरीर का भोग करेंगे। अभी कोई चाहता है कि मैं कहाँ जाऊं, देवों के लोक में जन्म लो। देवलोक को थोड़ा और सेंसेस एंजॉय करने का फैसिलिटी होता है ज्यादा। लेकिन सोचिए यदि कोई व्यक्ति को क्या मिल गया, एक पेड़ का शरीर मिल गया। रे पेड़ का शरीर ऐसा है, अब सोचिए बस यदि बहुत भारी वर्षा हो रही है तो 1 इंच भी यहाँ से वहां मूव नहीं हो सकता, वहीं खड़े रहना पड़ेगा उसको। पेड़ भी जीव है क्योंकि वो भी तो सिम्टम्स शो कर रहा है ना, बर्थ, नो, ग्रोथ, फिर उसके बाद ही आल्सो एजेस एंड देन ही डाइज। रिप्रोड्यूस भी करता है वो, राइट? सीड्स होते हैं उसके भी बी होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करता है देन ही डाइज। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते पेड़ लिविंग एंटिटी नहीं है, लोअर कॉन्शियसनेस में हो लेकिन है वो भी। तो 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा, राइट? अब सोचिए यदि हम लोगों को ऐसा शरीर मिल जाए, हम लोग तो इस मनुष्य योनि में, तो हमारे पास इतनी चेतना, चलिए बारिश आ रही है यहाँ से भागिए कहीं जाकर के खड़े होते हैं जहाँ पे शेल्टर हो। जब हमको ये शरीर मिला है इतना सोचने के लिए कि मैं शरीर की रक्षा करूं, तो क्या हम मात्र सिर्फ शरीर की रक्षा करेंगे और किसी की नहीं, और इंक्वायरी नहीं करेंगे कि एक्चुअल में शरीर दिया गया है, इसके अंदर आत्मा है। ये तो पता नहीं है हमको, लेकिन उदाहरण एक बताएंगे जिससे लोग समझ पाए। सिंपल उदाहरण है, दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट विल बी क्लोजिंग ऑफ दिस सेशन। सो वी हैव गॉट दिस मच इंटेलिजेंस कि हमको प्रोटेक्ट करना है, हमको फीड करना है बॉडी को, हर एक चीज पता है ना कि हमको अच्छी सेंसेस के लिए, आंखों को कुछ अच्छा देखना तो अच्छी डायरेक्टर्स मूवी बना रहे हैं, सेंसेस को कुछ अच्छा फील करना है। आज के समय में मोबाइल में ही बहुत सारी चीजें आ गई है, वेगन लेदर बैक, क्या बोला जाता है, सैंडस्टोन फिनिश, टच इसका देखिए एकदम स्मूथ, ऐसा बताया जाता है कि नहीं? मोबाइल बोलते हैं ना आजकल के डेट में, मोबाइल ब्रांड यही बोल रहा है। या फिर कोई क्लॉथ होता है ना, क्लॉथ पहना है, खादी है, मखमल है, सेंस ऑफ टच, तो उस पे हो रहा है, राइट? तो और फिर उसके बाद अच्छा सुनना है, इसके लिए इतने बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, इतने सारे म्यूजिक में जॉनर्स आ रहे हैं, ईडीएम, बेस, ट्रैबल, सो कॉल्ड सारी चीजें। लेकिन हमको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सारी चीजें इसमें, राइट? आप में से जितने लोगों ने कीर्तन सुना होगा उनको, तो ये सारी चीजें चाहिए। अच्छा खाना, इसके लिए इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, इतने स्लॉटर हाउसेस खुल रहे हैं, अलग अलग तरीकों से मांस को काटा जा रहा है, पकाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे अब हमें इसी इच्छा के कारण ना, ये जो इच्छा है शरीर के लिए कर रहे हैं लेकिन हम लोग सब। लेकिन यदि आप देखेंगे, आप एक बहुत अच्छा पिंजरा लेके आइए, सोने का हो, चांदी का हो, या फिर प्लेटिनम का पकड़ लो। सबसे महंगा क्या चल रहा है? पता नहीं कौन सा मेटेरियल चल रहा है, गोल्ड। उससे ऊपर प्लेटिनम। सो आप उससे महंगे से महंगा लेके आइए, उस केज के अंदर ना छोटा सा टीवी फिट कीजिए। केज लेके आए चिड़िया के लिए, चिड़िया को बिठा दीजिए, केज में एसी लगवा दीजिए, मस्त उसको फुल फैसिलिटी दीजिए, पूल वूल बना दीजिए अंदर। खुश रहेगा वो यदि आप उसको खाना नहीं देंगे तो। मैं क्या करूं भाई इस सोने के पिंजरे का, इस टीवी का, एसी का क्या फायदा? खाना ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मर जाएगा वो,
राइट। उसी प्रकार से ये जो शरीर है ना, क्या है? केज है। इसके अंदर कौन है? आत्मा बैठा हुआ है। शरीर को इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा एक्सेसरीज दे रहे हैं, अच्छे अच्छे गैजेट्स दे रहे हैं, सेंसेस हैं शरीर के पास में परसीव करने के लिए, इसको इतना अच्छा अच्छा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन आत्मा को क्या कर रहे हैं? आत्मा का फूड क्या है? चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम का या भगवान की जो लीलाएं हैं उनका गुणगान करना, भगवान के नाम जपना, सुनना, स्मरण करना, भक्तों का संग लेना, कृष्ण को दिया हुआ, भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, ये सारी चीजें उसका खाना है। आप में से कितने लोग दे रहे हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर कीजिए। मैं दे रहा हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ। अभी दे रहे हैं? चलिए अच्छा है। रेगुलरली, लेकिन ऐसा नहीं एक दिन खिला दिया एक हफ्ते भूखा रखा। कोई बोल सकता है रेगुलरली दे रहा हूँ? मैं बोल सकता हूँ। आप रेगुलरली दे रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? तिलक कहाँ है आपका? ठीक है, ठीक है। तो यही चीजें हैं हम में से, और ये हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी आर सिविलाइज्ड एंड वी आर इवॉल्विंग, सिविलाइज्ड एवोल्यूशन, राइट? दैट्स द टॉपिक। सो आप में से किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इट्स ऑलरेडी 2 मिनट बचे हुए हैं सेशन के लिए। किसी का भी क्वेश्चन हो सेशन के रिलेटेड पूछिए, या फिर मैं पूछ सकता हूँ। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा तो दिक्कत हो जाएगी टॉपिक से रिलेटेड।